சரி, அதுக்கு என்ன? எது உன்னை இந்த வழியா தானே வெளில போகணும். ஆமால. சரி, நான் போய் பார்த்து முடிச்சுக்கிறேன். அவங்க चल मिनट्स अरे अब तो देख लेंगे ना. சார் லுக்கு செமையா இருக்கு. அங்கிருந்து பார்த்தா அடையாளம் தெரியல. ஏதோ ஒரு சின்ன பையன் நினைச்சேன். उसकी नजर उस पे जा रही है. கேட்க மாட்டாங்களா? அவங்க பசங்க தனியாக வந்திருக்கீங்க. 10 நிமிஷம் போய் சார். पता चल गया. உங்க வைஃபா சார்? ஹாய் மேம். ஹாய். நாங்க ராம் சாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தெரியும், இப்பதான் சொன்னாரு. அப்படிலாம் இல்ல, லவ் மேரேஜ்னால யாருக்கு லவ் மேரேஜா? ஏன் என்னாச்சு? சார் மிரட்டுவாங்க தெரியுமா? பார்க்க கூடாது, பேசக்கூடாது, சிரிக்க கூட கூடாது. ஏய் சரி சரி போதும். சிரிக்க கூடாது, ஸ்லீவ்லெஸ் போடக்கூடாது. இதுக்கு எங்க அப்பாவே பெட்டர் மேம். எங்களது ஸ்கூல் டேஸ் லவ், 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து. ஸ்கூலா? சார் மேம், அதுவும் சார் ஒரு மாதம் அலைய விட்டுருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் வேற எதுவுமே கேட்கல, கிளம்பிடுறோம். பர்த்டே விஷ் ப்ளீஸ். ராம் திடீர்னு ஊரை விட்டு மெட்ராஸ் போயிட்டான். சொல்லாமலே சிரிப்பெல்லாம் அழுகையாக மாறிடுச்சு. இருந்தாலும் வருவான், எனக்காக வருவான்னு. சில நேரம் நம்மளை சுற்றி ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி இருந்தாலும் जैसा होना चाहिए था वैसा सोच रही है. वैसे इमेजिन कर रही है. अच्छा. லவ் மேட்ரா? ஆமா. எதுவும் பிரச்சனை வந்துடாதுல்ல? உன் பேர் என்ன? வசந்த். நடந்ததெல்லாம் என் கனவுலையாவது நடந்துடாதான்னு நான் ஏங்குனது. எடுத்துருச்சு. என்னால நடக்கவே முடியல. ஆனா நான் ஓடிட்டு இருந்தேன். வருஷத்துக்கு அப்புறமா அவனை பார்த்தேன். அந்த ஸ்கூல் பையன் முகம் எல்லாம் போய் தாடி மீசை ஆனா ஜானு சரி கதை கட்டலாம் போ. கிளம்பு 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 கிளம்பு. போ. எல்லாம் சேஃபாக ரீச் ஆகணும். 10 மெசேஜ் பண்ணு. ஜோடி பொருத்தம் சூப்பர் சார். குட் நைட் சார். குட் நைட்.
இல்லை இங்கேருந்து ஹோட்டல் கொஞ்சம் தூரம், என் வீடு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. अच्छा அதான் முன்னாடி வேணாம்னு சொன்னேன். நம்ம வேணா ஹோட்டலுக்கு போயிடலாம். நான் வேணா கேப் பண்ண. சாரி சத்தி. அது பேர் என்ன? ரம்பா ஊர்வசி. அதுங்க மூணையும் அது தாடி மீசை எடுத்தனாலும் உனக்கு அப்படி தெரியுது. किधर जा रही है? काफ़ी शानदार घर है उसका, है? अच्छा, फ्लैट में रहता शायद ये। वो घर तो उन्होंने बेच दिया था उसके बाद अब फ्लैट में रहता जहाँ अभी रिसेंटली रहता है वो घर है उसका। अकेला रहता है शादी घर में। कितनी मूर्ति लगी भगवान की फोटो। வீடு நல்லா இருக்கு. தேங்க்ஸ். பாத்ரூம் எங்க? நேராக போய் லெஃப்ட்டில் பெட்ரூம் இருக்குது. நீ போ, நான் டவல் எடுத்து வந்துடுறேன். सामान भी लेके आ ஜானு, रहे இந்த சோப்பு டவல் துணிலாம் இங்கே எட்டுற மாதிரி வச்சுட்டு போட்டுமா? எதுக்குடா? இங்க தான் இருக்கே. நீ கேட்டுதான் ஆகணும். நீ இப்படியே இருக்கக்கூடாது. கல்யாணம் பண்ணணும். உனக்குன்னு ஒரு கண்ணை பார்த்து சந்தோஷப்படணும். உன் பொண்டாட்டியை நான் பார்க்கணும். அவ யாருன்னு பார்த்துக்கோன்னு அதட்டி சொல்லணும். கண்டிப்பா சொல்லுவேன். वो बना रही हलवा बना रही शायद। ஓகேவா? ம், எங்கள் அம்மா சமைச்ச பாரு. ஜானு, நீ சந்தோஷமா இருக்கியா? ம், ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம். தோணுச்சு. சொல்ல வேணாண்ணா, சொல்ல வேணாம். தினைக்கும் சாமி முன்னாடி நின்று அழுவேன். ஆனா அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன். என் பொண்ணு சந்தோஷமா இருக்கேன்னா நிம்மதியா இருக்கேன்னு சொல்லலாம். பட் சொல்ல மாட்டேன். ओ लाइट भाग गई। அப்படியே இந்த வந்துடுறேன். अच्छा, अब गा रही वो वाला गाना है। ये लोग गाना गाया नहीं उसने। वाला गाना नहीं गाया, वहाँ भी नहीं गाया। अच्छा टॉर्च जल्दी कहा था वो तब हमारी ஆசை வைப்பதே அன்பின் தொல்லையோ, பாவம் ராதா. आगे लाइट। என்னடா அது? மெமரிஸ். वो भाई अटैची पे संभाल के तो याद है। ऐसा भी रखी हुई है। जिस पे चाय गिराए थे। எந்தா? ஐயோ, எப்படிடா அது உங்ககிட்ட வந்தது? வருது. அப்படியே அது கால் முளைச்சு பண்ணி திட்டமிட்டு தூக்கிட்டேன். सिलाई डायरी फूल रखा है।
என்ன பத்தியா இங்க கொடு. இல்லை ஷானு, படித்த ஒரு மாதிரி சரி. படி. மீன் கூடைக்கும் பூக்கடைக்கும் விளம்பரம் தேவையா? உன் வருகையை அறிய வகுப்பு பதிவேடு மின்னல் போகிறது. உன் கண்களை பார்த்தால்தான் எனக்குள் மின்னலே போகிறது. 10 மாதம் sorry. देख रहे नीचे सो गया. சரி மேல வா. फोन चलाने लगे हो. कुछ और ही समझ रहा था. டே, உன் இமெயில் ஐடி, ஹைட், வெயிட் இத்தியாதி எல்லாத்தையும் சொல்லு. ஏன் ஏன் நான் மட்டும் கே ராமச்சந்திரனை லவ் பண்ணிட்டு எம் சரவணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கல? எல்லாம் முடியும், சொல்லு. இன்னும் கம்ம நேரம் இருக்கு. फ्लाइट है सुबह की. अच्छा, सुबह की அந்த பொண்ணு फ्लाइट. ரெஸ்டாரண்ட் பத்திரமா பார்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னா. अच्छा, ये कहा था उसने. சார் நல்லவர்னு எனக்கும் தெரியும். बुलेट भी है इसके पास. गाड़ी इसने वही छोड़ी थी ना अपनी, इसलिए बाइक लेके आया था. इसीलिए वो जब मेट्रो से पीछे देख रहे थे तो पीछे देख के दोनों उदास हो गए थे. अच्छा, क्योंकि पीछे एयरपोर्ट दिख रहा था ना. है तो फ्लाइट ही छूट जाएगी उसकी फिर. इसे 4-5 दिन का प्लान बना के आना चाहिए था. नहीं 4-5 दिन वही रुकती तो फिर आती. वो केवल एक रात के लिए आई थी वो. इसने भी ले रखी है फ्लाइट टिकट. दोनों जान लगी हो. अब जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे. ये आ जाएगा फिर वापस.
पहुंच गए। अच्छा, अभी गए नहीं। जब तक वो गई नहीं तब तक था वो यहाँ। अच्छा, आ गए वापस। ओ, उसके कपड़े वही हैं। उन्हें को सिमर करो। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है 96। तो 96 इस फिल्म का नाम इसलिए पड़ रहा क्योंकि 96 का बैच था, 1996 का बैच। 96 में वो पास आउट हुए थे स्कूल से। मतलब काफ़ी अमेजिंग मूवी है और एक खूबसूरत सी लव स्टोरी दिखा रखी है, जो लव स्टोरी मतलब सक्सेस नहीं हो पाई और आखिर में मतलब फिल्म की सैड एंडिंग होती है। गलती उसी की थी, राम की ना। अगर राम मतलब पहले तो जानू की गलती थी, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। सारी गलत फहमी की वजह से उसको रुकना चाहिए था राम को। एक मतलब गलत फहमी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि उसने भी कोई जानबूझ के नहीं किया वैसा। क्योंकि अगर वो राम को देख लेती उस दिन तो वो उससे मिलने आ जाती। अब उसने उस दूसरे लड़के को देखा जो उसे परेशान करता था, और फिर उसने वो सब बोला और उस लड़की ने भी उसका नाम मतलब वो भी उसका नाम भूल गई थी राम का। उस वजह से सब गड़बड़ हो गया और राम ने भी गलती की। जैसे उसने उसके दोस्त ने से बोला था कि रुक जाते हैं हम, पर वो रुका नहीं। रुक जाना चाहिए था। अगर वो रुक जाते तो तब सब कुछ ठीक हो जाता। एक छोटी सी गलती की वजह से दोनों अलग हो गए हमेशा के लिए। मतलब मूवी बहुत ही अमेजिंग है और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक फिल्म पूरी तरह से मतलब बांधे रखती है और सच्चे प्यार को दिखा रखा है। हाँ, किस तरह से वो मतलब दिल से प्यार करते थे एक दूसरे को। हाँ, जैसे स्कूल में जब उसकी तबीयत खराब हुई थी जानू की, तो उस वक्त राम बहुत उदास हो गया था, वो उसको बहुत मिस कर रहा था और उसी की वजह से वो स्कूल आता था। फिर जब वो वापस आई कुछ दिनों बाद स्कूल में, तो तब जाके मतलब उसे अच्छा लगने लगा। और वैसा ही फिर जानू के साथ भी हुआ। जब राम और उसकी फैमिली जब वहाँ से चले गए थे, तो तब जानू को भी बहुत दुख हुआ, वो भी उसे बहुत मिस कर रही थी। तो दोनों एक दूसरे से मतलब एक सच्चा प्यार करते थे ना, और मतलब काफ़ी मज़ा आता है फिल्म को देखने में। और दोनों की जो एक्टिंग है, विजय सेतुपति की और त्रिशा कृष्णा की, मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग की दोनों ने। और मतलब दोनों की जो केमिस्ट्री दिख रही थी इस फिल्म में बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। फिल्म जबकि सिंपल थी बिल्कुल। वो जब ट्रैवल कर रहा होता है एक तरह से, और फिर तब वो अपने स्कूल को जब देखता है, वहाँ पर रुकता है, फिर स्कूल के अंदर जाता है, फिर तब उसकी सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। तो वो दोस्तों को फ़ोन करता है, फिर रियूनियन का वो होता है फैसला। और फिर सब दोस्त आते हैं वहाँ पे, और राम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके दोस्त ने उसे बुला रखा है जानू को।
और फिर जब वो आती है तो तब उसकी धड़कनें फिर से उसी तरह से बढ़ने लगती है। तो जो सीन्स हैं ना वो बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। और जिस तरह से वो जैसे ही वो उसे छूती है फिर से तो वो बेहोश हो जाता है। तो और फिर किस तरह से फिर वो बात ही नहीं कर पाता उससे स्टार्टिंग में। फिर जब वो दोनों अकेले होते हैं लास्ट में तब जाके उससे बात कर पाता है। और फिर दोनों पहले जब उसे छोड़ता नहीं वो होटल में तो वो नाराज भी हो जाती है कि क्या तुम सिर्फ मुझे छोड़ने आए थे। पर वो वहीं रुका हुआ था, वो भी चाहता था उससे बात करना। और फिर वो वापस उसे फ़ोन करती है तो तब जाके दोनों फिर से मिलते हैं और फिर दोनों काफ़ी बातें करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और तब जब उन चीज़ों का पता चलता है तब जाके मतलब तब उन्हें एक्चुअल रियलिटी का पता चलता है कि जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं था। उनकी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से सब कुछ मतलब बदल गया। तब जानू को ज़्यादा अफसोस होता है। जानू को भी और राम को भी, दोनों को ही अफसोस होता है। क्योंकि जानू को इसलिए अफसोस होता है क्योंकि उसने गलत समझा उसने कोई गलत लड़का देखा उसने जो उसको परेशान करता था। उसने उस दिन राम को नहीं देखा उसने और उसने कुछ और ही समझा। और राम को इसलिए वो मतलब अपनी गलती महसूस होती है कि उसने उस दिन उसका वेट नहीं किया कॉलेज के बाहर। तो दोनों ही उस वजह से बहुत दुखी होते हैं। और फिर किस तरह से दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, फिर कैफे में भी जाते हैं, फिर वहाँ जिस तरह से उसके फ्रेंड मिलते हैं। फिर वो जो जानू रहती है वो किस तरह से मतलब इमेजिन करती है चीज़ों को, मतलब इमेजिन करके उन्हें राम के स्टूडेंट को बताती है। मतलब एक फेक लव स्टोरी, मतलब एक फेक सक्सेस लव स्टोरी दोनों की। क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हस्बैंड वाइफ जैसा वो चाह रही थी, जैसा वो इमेजिन कर रही थी, कहाँ से ऐसा होता। तो वही सब जिस तरह से वो एक्सप्लेन करती है, उस चीज़ को बताती है, तो वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर लास्ट में जिस तरह से दोनों मतलब वो सिंगापुर चली जाती है और राम फिर से अकेला हो जाता है। और फिर एंडिंग में जब उसके कपड़े छोटे रहते हैं उनको अपने उसमें डालता है, अपने बक्से में। तो दुख होता है वहाँ पर ना। तो मतलब फिल्म बहुत ही अमेजिंग है और जिस तरह से मतलब चीज़ों को दिखाया गया है एक लव स्टोरी के थ्रू, और एक छोटी छोटी चीज़ों को भी मतलब बहुत अच्छे से फिल्माया गया है ना, जो कि उस चीज़ को पूरा फील करवाती है। और सब कुछ बिल्कुल रियलिस्टिक वे में दिखा रखा है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है जो फिल्मी हो, और सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम रियल लाइफ में सब कुछ होता हुआ देख रहे होंगे। तो उस तरह से दिखा रखा ना कि कुछ मतलब फिल्मों में जिस तरह की लव स्टोरी दिखाई जाती है वो तो फिल्मी अंदाज में दिखाई जाती है, पर इसमें बिल्कुल रियलिस्टिक वे में दिखा रखा है सब कुछ। और एक ऐसे लव स्टोरी जो कि सक्सेस नहीं हो पाई, तो भले ही मतलब एंडिंग में काफ़ी दुख होता है उस चीज़ को देख के, पर ये कि फिल्म को देखते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं होते। और फिल्म मतलब इंटरेस्टिंग होती आती है जैसे आगे बढ़ती है। और भले ही मतलब इसमें ऐसा कुछ मतलब उस तरह की फिल्म नहीं है जिसमें कि एक्शन हो, कॉमेडी हो, ऐसा कुछ हो, वैसा कुछ नहीं है। पर ये कि जो भी कुछ दिखाते हैं वो उस सबको देखने में मज़ा आता है। बहुत अच्छे से बना रखी है फिल्म और बारीक चीज़ों को दिखाया गया है। और फिल्म में केवल एक रात की कहानी है। बस स्टार्टिंग में दिखाते हैं दिन का सीन जब वो ट्रैवल कर रहा होता है और जब वो अपने स्कूल में जाता है काफ़ी सालों बाद, मतलब 22 साल बाद जाता है। 22 साल बाद जब अपने स्कूल में जाता है, फिर किस तरह से उसके
फ्रेंड जब यूनियन रखते हैं, तो मेन कहानी वहीं से थी फिल्म की, और पूरी एक रात की फिल्म है। तो भले ही फिल्म की स्टोरी सिंपल सी है, पर जिस तरह से फिल्म प्रेजेंट की गई है, जिस तरह से मतलब उसमें एक लव स्टोरी दिखाया गया है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर हैरान होता है देख के ना, वहाँ हैरान हो जाती है जानू, जब उसे पता चलता है कि इतने सालों से फॉलो कर रहा है मुझे, शादी में भी आया। जैसे सोच रहे थे कि शादी में आता और मैं शादी रुकवा देता, लेकिन शादी में आया था वो, वहाँ चला गया। वो जबकि था उसे गलत फहमी हुई कि उस दिन शायद ही मुझसे नाराज़ होगी, अब कभी बात नहीं करेगी। वही है ना, गलत फहमी की वजह से सब गड़बड़ हो गया। वो दोबारा बात करता तो क्या पता उनकी लाइफ चेंज हो जाती। इसलिए कभी भी दूसरे की मतलब बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे भी कोई भी इंसान हो, उससे खुद बात करनी चाहिए एक और बार, क्योंकि कई बार ऐसे में गलत फहमी हो जाती है ना। गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी अब जिस तरह से वो उसको फॉलो करता रहा और लास्ट तक फॉलो करता रहा जब तक उसकी शादी नहीं हुई, तो अगर एक बार भी उससे मिल लेता दोबारा, तो शायद तब ये सब नहीं होना था, उन दोनों ने अलग नहीं होना था। अगर उसके मुँह के सामने बोल देती वो, तब हाँ जा सकता था। उसे एटलीस्ट एक बार और ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि उसे पता नहीं था कि वो कहाँ रहती है, कहाँ किस कॉलेज में पढ़ती है, सब कुछ पता था उसे। तो उसे एटलीस्ट एक बार और मिलना चाहिए था उससे। अगर वो एक बार और मिल लेता उससे, तो वो दोनों साथ में होते और शायद उन दोनों की शादी भी हो जाती। बाकी जानू का कैरेक्टर निभा रखा है, मतलब 10th वाला स्कूल वाला। हाँ, जिन बच्चों ने मतलब वो रोल निभाया है, गौरी जी किशन ने निभा रखा है, और राम का निभा रखा है आदित्य भास्कर। काफ़ी अच्छी कमाल की एक्टिंग लगती है दोनों। हाँ, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी ओवरऑल फिल्म की कहानी अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।